Hello friends, our next topic is circular current loop as a magnetic dipole. Okay, we have studied the electric dipole in the second chapter. What is electric dipole? Electric dipole is a combination of two equal and opposite charges. Okay, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है. This is minus q, this is plus q, and separated with some distance. So that is known as the electric dipole. Now what will be the magnetic dipole? Magnetic dipole in which we have the two poles. Okay, like in a magnet you have two poles, north pole and south pole. In the same way, there is a one dipole, magnetic dipole, in which there will be two poles, north pole and south pole. Now here we will prove that a circular current carrying wire, acts as a magnetic dipole. हम यहाँ प्रूव करेंगे कि जो सर्कुलर करंट कैरिंग वायर होता है वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह एक्ट करता है. जैसे आपने मैग्नेट देखे, मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. अब हमने ये अभी तक ये पढ़ा है कि देयर इज अ सर्कुलर करंट कैरिंग वायर क्रिएट द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. कोई भी वायर है, चाहे सर्कुलर हो या स्ट्रेट हो, अगर उसमें से करंट फ्लो रहा है तो उसके आसपास क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी. तो अब हम यहाँ देखेंगे कि इफ देयर इज अ सर्कुलर करंट कैरिंग वायर, देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड एंड देयर एक्ट as there it making a dipole, magnetic dipole वो बना रहा है. ठीक है. Okay, so that we will prove it. Okay, now we have studied the magnetic. हमने एक डेरिवेशन किया था बायो-सेवर्ट लॉ में कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल. Okay, you have one circular current carrying coil and at this point, on this point we have calculated the magnetic field. Okay, and what was that magnetic field? वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आई थी? तो द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल इज B equal to, what was that value? B equal to mu naught I R square upon, this is R square upon 2, this is R square plus X square to the power 3 upon 2. Okay, this is the magnetic field viewed on the axis. ये आपकी एक्सिस है और इस पॉइंट पे P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी? तो ये जो डिस्टेंस था ये आपका था X और ये जो था रेडियस दैट इज R. So the magnetic field on this point is B equal to mu naught I R square 2 R square plus X square to the power 3 by 2. So this is the magnetic field. Now if we consider if X is much greater than R, मतलब ये जो रेडियस है वो छोटी है, मान लो रेडियस जो छोटी है और ये जो डिस्टेंस है, this distance is very big. So in this case what will happen? We can simplify like this: B equal to mu naught I R स्क्वायर अपॉन ये एक्स स्क्वायर, ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि आर स्क्वायर छोटा होगा एक्स स्क्वायर में, तो ये हो जाएगा 2 एक्स की पावर 3. स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो दैट इज 2 एक्स टू द पावर 3. ओके, so this is the magnetic field if x is much greater than r. Now here we know that the area of coil A is equal to पाई आर स्क्वायर. एरिया क्या होता है यहाँ पे? पाई आर स्क्वायर. तो यहाँ से आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? A बाय पाई. ठीक है, तो ये A बाय पाई को हम यहाँ रख देंगे, तो दैट विल बिकम इक्वल टू म्यू नॉट आई A अपॉन 2 एक्स क्यूब, या स्क्वायर से लिख लेते हैं 2 पाई एक्स. ओके, दिस R square की जगह हमने रखा A by pi. Okay, so this will become, so now this has become, now what is I into A? So we know M equal to I into T.
we have introduced the quantity magnetic moment in the previous classes. What is this magnetic moment? Magnetic moment is a tendency of the magnetic field to align the circular current coil in its direction. ओके, सर्कुलर करंट लूप को अपनी डायरेक्शन में अलाइन करने की जो टेंडेंसी होती है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, और वो किसके बराबर होती है? I इंटू ए, करंट इंटू एरिया। तो यहाँ पे ये हो जाएगा B इक्वल टू म्यू नॉट M अपॉन 2 पाई x, दैट इज 2 पाई, दैट विल बिकम 2 पाई x। अब यहाँ पे हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, तो ये हो जाएगा B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन x। ओके, so this formula it will be equal to B equal to mu naught upon 4 pi 2m upon x cube. Okay, we have calculated the electric field on the axis of the dipole. आपको याद हो फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कोई भी जो डाइपोल होता है, ये आपका डाइपोल होता है, इस P पॉइंट पे जब हमने इस एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करी थी, तो उस केस में आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करी थी, तो उस केस में आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी वो आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब। ये डिस्टेंस यदि r है तो r क्यूब, आपको याद होगा, आप देख सकते हो फर्स्ट चैप्टर में। तो अगर आप इन दोनों फॉर्मूले को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे देयर इज सिमिलरिटी बिटवीन दिस टू फॉर्मूले। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज अ कांस्टेंट, और यहाँ पे हम कांस्टेंट क्या यूज करते हैं? म्यू अपॉन 4 पाई। जैसे वहाँ पे हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट यूज करते हैं, यहाँ हम यूज करते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। P जो था वो था आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और यहाँ पे M जो है दैट इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ओके, मैग्नेटिक मोमेंट है, हम इसको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी बोल सकते हैं क्योंकि एक डाइपोल बना रहा है, वही चीज हम प्रूव कर रहे हैं। तो M इज द मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, एंड X इज द डिस्टेंस। जैसे यहाँ आपका R डिस्टेंस और ये X डिस्टेंस है, तो देयर इज अ सिमिलरिटी बिटवीन दीज टू रिलेशन, सो वी कैन से दैट द सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल इज एक्ट एज द मैग्नेटिक डाइपोल। ओके, so we can write here so a circular current loop is equivalent to a magnetic dipole। हम ये लिख सकते हैं मैग्नेटिक डाइपोल के क्या होगा? बराबर। ठीक है, दिस यू कैन राइट। ओके, अब इसमें अगर ये मैग्नेटिक डाइपोल बन रहा है तो इसके दो पोल्स भी होंगे, नॉर्थ पोल भी होगा, साउथ पोल भी होगा। अब हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा नॉर्थ पोल होगा और कौन सा साउथ पोल होगा? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वी टेक अ करंट। अब सर्कुलर के केस में क्या होता है, करंट की जो डायरेक्शन होती है दैट इज आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। सपोज द करंट डायरेक्शन ऑफ द करंट इज क्लॉकवाइज। अभी हम मान लेते हैं कि करंट की डायरेक्शन क्या है? क्लॉकवाइज है। अब यहाँ पे इस साइड पे कौन सा पोल बनेगा और इसके पीछे साइड पे कौन सा पोल बनेगा? इसके लिए हम यहाँ पे रूल यूज करते हैं कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो आपका सर्कुलर करंट कॉइल की डायरेक्शन है उसके अकॉर्डिंग हम N या S बनाते हैं। वी ट्राई टू मेक N और S। ओके, तो अगर आप यहाँ देखें तो इसको हम ऐसे बनाते हैं, आपका बन रहा है S। ठीक है, इसमें N पॉसिबल नहीं है, N नहीं बन सकता। ठीक है, इसमें क्या बन रहा है? S। तो इसका मतलब ये हुआ कि टॉप साइड पे इसका बन रहा है साउथ पोल, और पीछे की साइड पे आपको इसी कॉइल को अगर आप जब पीछे की साइड देखोगे तो ये जो आपको डायरेक्शन अभी साउथ क्लॉकवाइज दिख रही है आपको एंटी क्लॉकवाइज दिख रही है, तो ये होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब इसमें हम S बनाएंगे। अगर S बनाए, आप देखोगे
तो अगर आप एस बनाने से देखोगे तो ये बिल्कुल अलग जा रहा है। देखिए एस की डायरेक्शन इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, तो इसके अपोजिट है, तो एस इसमें नहीं बनेगा। तो देखते हैं एन बनता है कि नहीं इसमें। तो थोड़ा सा ओके, तो देखिए एन की डायरेक्शन इधर और तो एन क्या यहाँ पे कौन सा बन रहा है, नॉर्थ पोल। तो आप ये ध्यान रखिए कि जब भी क्लॉकवाइज होगा, मैं लिख देता हूँ क्लॉकवाइज एंड दिस इज एंटी, व्हेन देयर इज अ क्लॉकवाइज करंट, जिस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज करंट होगा वहां बनेगा आपका साउथ पोल, और एंटी क्लॉकवाइज वाली डायरेक्शन में बनेगा आपका नॉर्थ। ठीक है, तो ये आप रूल ध्यान रखिए, इससे आप पता कर सकते हो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो दिस इज नोन एज द करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। तो अब मैग्नेटिक डाइपोल बन रहा है, तो हम मैग्नेटिक मोमेंट ना बोल के अब हम बोलेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। जैसे हम वहाँ बोलते थे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, अब हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट को हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, बिकॉज इट हैज अ डाइपोल। इसके पास क्या हो गया, डाइपोल भी हो गया। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।